हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कैंसर पेशेंट्स और केयरगिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करेंगे, जो अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान उन लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड है, जिन्हें हम पहले डिस्कस और बाद में एक एक करके आप लोग के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मैं सबको बताना चाहूंगी कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड हम सेशन के एंडिंग में आप लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं सब लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। आप सभी को जल्दी से जेनोंको ऐप के बारे में भी बता देती हूँ। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस और डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ है मिस्टर सुनील बजाज, जो कि एक मेडिकल फिजिसिस्ट हैं। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। Mr. Sunil Bajaj is a physicist working alongside many doctors for complementary and alternative treatments available in several diseases, including brain cancer. He has treated many brain cancer GBM patients who have now recovered well. He shall be sharing insights on many things, including signs and symptoms of brain cancer, complementary and alternative treatments available in these cases, and lifestyle changes that one should incorporate during and after their treatment. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? Hello. यस। Good यस evening. सर। Can you hear me? यस सर, वी कैन हियर यू नाउ। Yeah. Good evening, everyone. My name is Sunil Bajaj, and I'm based out of Indore, Madhya Pradesh, and doing a lot of research on various ailments which do not find answers in the modern day medical world. I've been doing this for almost 10 years now. It's I started my journey with diabetes, then went to migraine, then to cardiac insults, and lastly, I've been stuck to brain tumors. Last year, I've been working very closely with brain tumors, the GBM4, and whatever questions you need to pose to me, I'll be glad to answer every one of you. But then my approach to this is based on approach to all these alternative therapies and alternative medications are based on Atharve, where else it says ki all the living beings on planet Earth are made up of the Panchabhutas, that is Panchadev Tattva, and eventually they at the end of their life cycle they get vileen in the Panchatattva again. So getting ahead with this, I'm open to all your questions, and any of you, if you want to have any specific question or specific detailing, I'm available to you over the telephone every time. And this I'm doing as a, I would not use the word charity, but then I'm doing this to help mankind. And I want to take my researches further to all such ailments which do not actually find any answer in the modern day treatment. Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एंड योर वेलकम टू आवर सेशन है। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग बात कर रहे हैं आज ब्रेन कैंसर के बारे में, जीबीएम के बारे में। सो आपके हिसाब से वो एग्जैक्टली क्या होता है? Basically, GBM
can be located at any place in the brain, and depending on the location of that tumor, the activity of the brain, the body, the spine, and the entire physique of a patient can be affected. It could be speech, it could be memory, it could be movement, it could be any function of the body. So depending on the location of the tumor, and the tumor can be malignant also, and the tumor can be benign also. In both cases, initially the problem remains the same, because no sooner the tumor gets bigger and bigger, it starts compressing the area where it is located, and that disturbs the entire life of the patient. So the beginning is done like this, and eventually there are cases when it spreads beyond brains also to the entire part of the body also. So talking about the brain tumors, this is what it is all about. Right, sir. सो सर एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी छोटी सी, इफ पॉसिबल हम लोग थोड़ा हिंदी ज्यादा यूज कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके. बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. या थैंक यू सो मच सर. एंड सर हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं ब्रेन कैंसर के बारे में, तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ पहले से कोई ऐसे साइंस होते हैं स्पेसिफिक जिनसे पता चल सके? एक्चुअली GBM4 की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये काफी लेट स्टेज में ही आइडेंटिफाई हो पाता है, और इसके इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफिकेशन के चांसेस बहुत रेयर देखे गए हैं, बिकॉज एक्चुअली इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस भी अवेलेबल नहीं है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. बट देन व्हाट एवर इज अवेलेबल, the identification and symptoms at the later stage could be a default in speech, a default in memory, a default in walking, a default in any kind of an डिफॉल्ट जो आपके शारीरिक डिफॉल्ट को कहीं पर भी दर्शा सकता है. तो जनरली मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका ट्यूमर आपकी स्पीच और मेमोरी ग्लैंड के बीच में अगर है, तो आपकी स्पीच भी डिस्टर्ब होगी और आपकी मेमोरी भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो जब वहां पे ग्रो करता है तो वो स्पीच ग्लैंड को भी कंप्रेस करता है और मेमोरी ग्लैंड को भी कंप्रेस करता है. और जैसे जैसे वो ट्यूमर की साइज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं. सो बेसिकली सिंस ब्रेन इज फ्रॉम 75% to 90% वाटर, तो इनिशियल स्टेज में तो कंप्रेशन ब्रेन खुद एडजस्ट कर लेता है, लेकिन एट अ लेटर स्टेज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रेन टू आल्सो एडजस्ट दैट कंप्रेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. और उसके बाद जब आप MRI वगैरह कराते हैं तो देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, and then the medical procedure starts into this. जी सर. तो सर इन केसेस में जो सबसे कॉमन मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो क्या अवेलेबल होते हैं? भाई कॉमन मेडिकल ट्रीटमेंट्स तो सबसे पहले उसकी सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन होता है, फिर कीमो होती है, और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, the biggest and the सबसे बड़ा थ्रेट इसमें जो है वो रीअकरेंस का है, कि आपने एक बार तो सर्जरी भी करा ली, रेडिएशन भी करा लिया और कीमो भी करा ली, उसके बाद मंथली कीमो भी करा लिया, लेकिन उसके बाद में इन 99.9% केसेस the reoccurrence possibility is there. एंड इसमें एक प्रॉब्लम ये और होता है कि जब आप
सर्जरी कराते हैं तो सर्जरी के अपने साइड इफेक्ट्स और आउटफॉल्स होते हैं। जब रेडिएशन कराते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स और आउटफॉल्स होते हैं। और लास्टली जब आप कीमो का ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स और आउटफॉल्स होते हैं। तो ये करते करते ही हम पेशेंट की इतनी दुर्गति हो जाती है कि जब वो रियकरेंस की तरफ जाता है तो जितने उसके केयर गिवर्स हैं और जो पेशेंट है उसकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि दोबारा, या शायद कुछ केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि 3 बार उनकी सर्जरी हो गई है। लेकिन अगर सर्जरी होनी है और अगर उसको दोबारा वापस से रिलैप्स होना है तो क्या वाकई सर्जरी और रेडिएशन और ये इतना यूजफुल है? This needs to be understood, and that is why we have started working on alternative therapies and alternative medication over this. अब मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि 0.5 mg की अगर आप एक रेस्टिल ले लें, एक स्वस्थ इंसान की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर एक स्वस्थ इंसान एक 0.5 mg की रेस्टिल लेके अगर सोता है तो वो 10 घंटे सोने के बाद में भी उसको उठने की इच्छा नहीं होती है। This is only 0.5 mg of Restil. But to all these patients, anything between 1000 to 2500 mg of medication is given every day, which consists of anti-epilepsy drugs, which consist of brain seizure drugs, which consist of many sleep affecting drugs. सो जब इतने घातक ड्रग्स अगर हमें किसी पेशेंट को देते हैं तो उसकी परिस्थिति, अपार्ट फ्रॉम दी साइड इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड कीमो एंड सर्जरी, जो रेगुलर मेडिकेशन होता है उससे भी उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही होती जाती है। और ये अमूमन हमने सारे पेशेंट्स में यही देखा है कि जैसे जैसे उनकी डिपेंडेंसी मेडिकेशन उनको ज्यादा होता जाता है, उनके कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। सो ये एक वन लीडिंग टू द नेक्स्ट, एक के बाद एक परेशानियों का सबब है। शुरुआत हम सर्जरी से करते हैं, सर्जरी के बाद में हम रेडिएशन पे जाते हैं, रेडिएशन से आपको कितना लॉस होगा, क्या मेमोरी बचेगी, चली जाएगी, यू जस्ट डोंट नो। ऑल्दो हम बहुत ही पिन पॉइंट रेडिएशन की बात करने लगे हैं आजकल कि इट विल बी ओनली एब्सोल्युटली टू द पॉइंट, but then eventually all these chemical based and nuclear based sciences eventually have not paid any results as far as GBM4 is concerned. जी सर। तो सर ये हम लोग आज जैसे इस बारे में काफी चर्चा करने वाले थे कि फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं अभी पेशेंट्स के लिए। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हमने हमारी रिसर्च अथर्ववेद से शुरू की थी, और अथर्ववेद ये कहता है कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वेदर इट इज ह्यूमंस और एनिमल्स और फिशेस और ट्रीज और प्लांट्स और शब्स, व्हाटएवर दे आर, ये सब पंच तत्वों से बने हैं और ये अंत में पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और इनकी जितनी भी व्याधियां हैं वो इन पंच तत्वों में ही ढूंढनी पड़ेगी आपको। So eventually, this was the base of my research, and eventually I have come a long way from there. And today, if you want to treat a GBM4 patient, a correct mix of oxygen with correct mix of water with correct mix of energy and correct mix of electricity, these are the 4 areas which we need to simultaneously work. अब मैं एक एक को आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताना चाहता हूँ कि स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग।
And skin acts as a solar panel to the body, which converts the solar energy to electrical energy for your body. And that electrical energy is used by all the cells in the body. क्या होता है कि जब हम इतनी सारी मेडिकेशंस और इतना सारा ट्रीटमेंट किसी एक पेशेंट को दे देते हैं, तो उसका ये सारा एरिया टू वर्क ये डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, और नेचुरल साइकिल जैसे ही डिस्टर्ब होती है उसके बाद में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिकवर फ्रॉम ऑल दीज इश्यूज. अब नाउ कमिंग टू GBM4 पेशेंट जिसकी सर्जरी हो चुकी है और जिसकी रेडिएशन हो चुका है और कीमो भी कंप्लीट हो चुका है, एंड ही इज ऑन द रेगुलर मेडिकेशंस. अब आप देखिए कि चाहे वो ब्रेवाश्योर दे दें या लिविप्रिल दे दें या एनी ऑफ दीज रिलेटेड मेडिसिन, क्योंकि मेजरली इनको जो मेडिकेशंस दिया जाता है वो ब्रेन सीजर एंड एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स ज्यादा दिए जाते हैं, सो दैट कि इनको किसी भी तरीके का ये नया नुकसान और ना हो सके. लेकिन इसके चलते प्रॉब्लम ये इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस ब्रेन की रिकवरी होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं. अभी जिन पेशेंट्स के लिए हमने कोशिश की विगत 1 साल में, उन सारे पेशेंट्स को हमने ये प्रीमिक्स दिया है, a correct mix of oxygen with correct mix of water with correct mix of electrical energy and correct mix of ground energies. इसका नतीजा ये हुआ है कि we have been able to put the patient correct after the surgery, after the radiations and after the chemo, and patients have now they are on no medication, उनकी कोई भी दवाई चालू नहीं है, and they have recovered to an extent of 70 to 95%, 70 to 95%. and अभी मैं ये जो रीअकरेंस की मैंने आपसे बात की थी, अब रीअकरेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, and इसके रिजल्ट्स शायद हमें 2023 के एंड तक देखने को मिलेंगे. And we are willing to take up this challenge of reoccurrence also, क्योंकि when I met Dr. B.K. Misra, who is the eminent surgeon as far as GBM cases are concerned, he operates at the Hinduja Hospital, Bombay. उनका ये कहना था कि साहब आप कुछ भी कर लें, ये reoccurrence 100% केसेस में वापस हो जाता है. The reoccurrence का जो समय है, it can be from 3 months to 1 year, but लेकिन reoccurrence होता जरूर है. And ये इसका सबसे बड़ा थ्रेट है. This is the biggest threat. क्योंकि एक बार reoccurrence हो जाता है तो उसके बाद में to handle the patient and to have a chance of his recovery are very very bleak. तो इसलिए हम पहले स्टेज से ही उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये रियकरेंस ना हो, और इस रियकरेंस के चैलेंज के वजह से ही वी हैव डिजाइन्ड आवर ट्रीटमेंट डिफरेंटली. नाउ you cannot have one kind of a treatment for all the GBM patients. You have to design separate kind of a treatment for all different GBM patients, because everybody has got a different problem. Rather, why GBM? All the humans, they have a different QR code. So a same treatment cannot be given to everyone. A new treatment has to be designed for each GBM warrior. So we have been doing this, and till such time we have been reasonably successful. I would say whatever number of patients I have treated, they are all doing well. And in case any one of you want to have the references of the patients, I can send them to you on an individual basis. Because if you collectively start questioning the caregiver of the warrior, it will be very difficult for him or her to give you all the details collectively.
लेकिन अगर इंडिविजुअली आपको कोई भी डिटेल्स चाहिएगी तो दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू यू एंड यू कैन गो एंड मीट द वॉरियर्स आल्सो. Not that you can only talk to them over the telephone, you can go and meet those patients. They all are here in India itself. जी सर। तो सर एक ये क्वेश्चन काफी पेशेंट्स को रहता है, जैसे कि अभी हमने बात करी है कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कई पेशेंट्स अपना मेडिकल जी. ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उनको साइड बाय साइड अपना हाँ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट भी लेना है, तो क्या वो ट्रीटमेंट्स लेना उनके लिए जी. सेफ होता है? कुछ उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते, या वो इंटरफेयर तो नहीं करता? हाँ हाँ, it is the other way round. The other way round is this कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट या जो सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है, इसमें जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट है वो जरूर इंटरफेयर करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने भी जिन पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट किया है, दे हैड कंप्लीटेड ऑल देयर प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट, और उसके बाद हमने ये सब चीजें शुरू की थी एंड ग्रेजुअली उनकी पूरी मेडिकेशन खत्म कर दी ओवर द पीरियड ऑफ 2 months. सो ये जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, ये डेफिनेटली आपके रेगुलर ट्रीटमेंट को कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करता है या उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि दिस ट्रीटमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन 3 things. One is oxygen, second is water, third is electrical charging of the human body. जी सर। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद में लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने चाहिए स्पेसिफिकली, जैसे डाइट होता है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी चीजें प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी अवॉइड? जितना मैं इसको समझ पाया हूँ, उसमें केवल एक ही चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए, एंड दैट इज द शुगर फ्री डाइट. Any warrior should not be given any form of sugar, one thing. And second thing, whatever his is lifestyle, it should be a close to a correct timed lifestyle. उसकी पंक्चुअलिटी शुड बी करेक्ट. बाकी ऐसा कोई भी चीज नहीं है एक्सेप्ट फॉर शुगर विच अ पर्सन कैन अवॉइड. जी सर। सर जैसे कि अभी हमने बात करी है डाइट के बारे में, तो उसी के साथ साथ सर ऐसी माइंड बॉडी वेलनेस टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो सर क्या इनका भी रोल होता है? क्या ये भी बेनिफिट करती हैं ट्रीटमेंट के बाद? डेफिनेटली ये योगा और प्राणायाम बहुत हेल्प करते हैं इसमें. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ इसका, कि जब आप प्राणायाम में भ्रामरी करते हैं तो इट वाइब्रेट्स द एंटायर ब्रेन लिक्विड. इट वाइब्रेट्स द एंटायर ब्रेन लिक्विड. और वो ब्रेन लिक्विड जब वाइब्रेट करता है तो वो पूरा अपनी जगह सेटल हो जाता है. It does not overflow from one end to the next end of the brain. It settles down. So ये प्राणायाम और योगासन बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ योगासन है या योग आसन कह लें उन्हें, उनको अवॉइड करना चाहिए. लेकिन आप प्राणायाम पूरा कर सकते हैं और कुछ एक योग आसन को छोड़ के आप पूरा योगाश्रम अच्छी तरह यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑलवेज बेनिफिशियल. जी सर, थैंक यू सो मच। आपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया, दो इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लोग उसके लिए भी पूछते हैं कि ट्रीटमेंट हो गया, पूरा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो गया, पर रेकरेंस, जैसे अभी हमने रेकरेंस की बात करी है, तो क्या उसके चांसेस को कम करने के लिए ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स हैं, ऐसी कोई प्रोटोकॉल्स हैं जो लोग ले सकते हैं? जी, बिल्कुल हैं. इसके प्रोटोकॉल्स भी हैं और अभी हमने इसका एक नया प्रोटोकॉल डिज़ाइन भी किया है जिसको हम फॉलो भी कर रहे हैं. और जब उसमें अभी करीब 1 साल और लगेगा,
जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम रीअकरेंस को चैलेंज कर पाए। अब मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ, हु इज माय ब्रदर इन लॉ ओनली। Last February, he was detected with GBM4 between the speech and the memory gland. उनका सर्जरी भी हुआ, उसके बाद उनका रेडिएशन भी हुआ, उसके बाद उनका कीमो भी हुआ, एंड इवेंचुअली ये होने के बाद में ही वाज कन्वर्टेड टू अ वेजिटेटिव बॉडी ओनली। ही कुड नॉट हैड, उनको ये भी समझ नहीं आता था कि अभी दिन है या रात है। उनकी ओरिएंटेशन खत्म हो गई थी, डाइट खत्म हो गई थी। He could not stand because his entire right side was, I would not say paralyzed हो गया था, but it became so weak, sensationless हो गया था rather. It was sensationless. So he could not stand, and eventually we started with our alternative therapy, and as of today, उनका जो ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, द मेडिकल प्रोटोकॉल का जो ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, वो खत्म हुआ था समवेयर इन जून। जून के बाद में उनका 6 महीने का जो मंथली कीमो था वो जरूर चालू था, लेकिन उसके साथ साथ वी स्टार्टेड विथ आवर ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस आल्सो। एंड आज अगर आप उनको देखें और उनसे बात करें, तो शायद अगर आपको प्री डिटरमिन्ड या प्री नोशन में अगर ये नहीं पता है कि ही हैड अंडरगॉन थ्रू ऑल दिस हैपनिंग इन लाइफ, तो आप ये उनसे बात करके बता नहीं सकते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम रहा है। He has recovered almost 99% on his memory. He has recovered 100% on his physical abilities. He has recovered 80 to 90% on his speech. If you are able to talk to him one to one, independently आप एक 1:1 बात करेंगे, तो आप कभी पता ही नहीं लगा सकते कि उनको ये कभी समस्या हुई भी थी। So converting a vegetative state body till this level, I think so it is a great journey by itself. And now we are trying with a quarterly package and a everyday medication of these panchatattvas in a defined manner. And we are trying to take care of him and trying to work out with his reoccurrence on a checkup, on a monthly checkup. जी सर, ग्रेट टू नो दैट उनकी इतनी अच्छी रिकवरी हुई है। तो सर एक ये मेरा क्वेश्चन था दैट मतलब काफी लोग ये पूछते भी हैं दैट जो कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं उनका क्या रोल रहता है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है जब ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का या ट्रीटमेंट के बाद। तो सपोर्ट ग्रुप्स जो होते हैं उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? सपोर्ट ग्रुप्स भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ as of today the research on any such ailment, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं करना चाहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटी सी बात है, माइग्रेन। Till such time migraine has no remedy in the medical world. When a patient suffers from migraine, he is given some painkillers and asked to rest. There is nothing more than a medical practitioner can help that patient. And ये never ending problem है। आप उसको कोई भी पेन किलर दे देते हैं, वो पेन किलर से टेम्परेरीली उसको रिलीफ होता है, 8 दिन 10 दिन में वापस उसको अटैक आता है और वापस उसकी वही स्थिति होती है, एंड दिस गोज ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स। सो उसको रिलीफ कहीं नहीं मिलता। तो इसीलिए ये जो रियकरेंस की, जीबीएम की रियकरेंस की बात है, ये रियकरेंस पे वी आर फोकसिंग ऑन दिस रियकरेंस, एंड वी वांट टू सी टू इट कि दिस रियकरेंस does not take place.
And I think so, in case if we are successful in doing so, which I feel we should be, and जैसे ही ये recurrence को हम arrest कर पाएंगे, I think so this will be the best medication possible for this kind of a treatment. Right, sir. Totally agree अब with एक you. बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक बात और बताना चाहूंगा कि my brother-in-law, he got operated on 5th of March 22, and today, as of now, he is on no medication. He is on no medication at all, not even 0.1 mg of any kind of a medication. This is something very, very important. राइट सर. तो सर मैं आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, दैट आप कैंसर पेशेंट्स और कैंसर केयर गिवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट वरी अबाउट दिस. दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स. डेफिनेटली जिस तरीके का रिसर्च हमारे देश में इसके ऊपर होना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है. We are depending on the Western world for all the protocol of the treatment. I want to share one thing with you. There are two ways of treating any ailment. किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के दो किस्म के रास्ते होते हैं. एक वेस्टर्न वे का रास्ता है और एक ईस्टर्न वे का रास्ता है. वेस्टर्न वर्ल्ड का रास्ता ये होता है कि कोई भी बीमारी उनकी दुश्मन होती है और उस बीमारी को वो तब तक अटैक करते रहते हैं जब तक वो सप्रेस ना हो जाए. वो खत्म कभी नहीं होती, सप्रेस ना हो जाए. चाहे आप कार्डियक इंसल्ट ले लें, चाहे आप ले लें, चाहे आप कोई भी बीमारी ले लें, उसकी दवाई उस पेशेंट को पूरी उम्र भर लेनी पड़ती है और वो किसी भी दिन रिलैप्स हो सकता है. एक कार्डियक इंसल्ट के बाद में अगर एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो गई है या उसका बाईपास ऑपरेशन भी हो गया है, then too he has to take his medication all along his life, and still there is no guarantee कि it will not relapse. वो दोबारा नहीं होगा. ये वेस्टर्न वे का तरीका है. ईस्टर्न वर्ल्ड का तरीका ये था कि वो जो बीमारी होती है उसके रूट कॉज को अटैक करते हैं कि वेयर इज द रूट कॉज. दे ट्राई एंड फाइंड आउट द रूट कॉज. दिस हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया, चाइना, मंगोलिया एंड ऑल द ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान. तो आप ये देखेंगे कि एक एवरेज जापानीज की लाइफ कितनी बड़ी है. और आज अगर आप ये देखें कि अगर आपने हुंजा वैली का नाम सुना हो, which is a place located on the Afghanistan-Pakistan border, वहां पर एक एवरेज इंसान की उम्र 120 से 130 साल होती है आज भी. वो तो ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से दूर है, वहां पर ये वेस्टर्न वर्ल्ड अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो आयु है वो 120 साल से 130 साल है. तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी की जो इंजीनियरिंग है वो इतनी सुपर्ब इंजीनियरिंग ईश्वर ने करके दी है आपको कि उसको नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम वेस्टर्न वर्ल्ड के इतने ज्यादा प्रकोप में आ गए हैं, इतने ज्यादा प्रकोप में आ गए हैं कि हम उससे बाहर देखना ही नहीं चाहते कि इसके बाहर भी क्या कोई ट्रीटमेंट हो सकता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट. मैं क्या बोलना चाहता हूँ. यस सर, डेफिनेटली. इनफैक्ट आपने इतनी अच्छे से पूरा बताया, पूरा एक्सप्लेन किया, एंड आई एम श्योर कि कई लोगों को काफी नॉलेज मिली, काफी इंसाइट्स मिले इस बात पे.
सो थैंक यू सो मच सर मेरे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से आंसर करने के लिए। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आपके लिए चैट बॉक्स पे भी आए हैं। सो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं सबको बता देती हूँ कि मैंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ऐप डाउनलोड के लिंक यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर दिया है। एंड मैं नंबर एक बार वर्बली भी बोल रही हूँ ताकि जिन लोगों को चैट बॉक्स एक्सेस नहीं है वो एक बार हम्म नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम्म। नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट करना चाहूंगी, नंबर है 9930709000। तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज हैंड रेज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई और आपकी क्वेरीज हैं, कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं या आप डॉक्टर सुनील से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड वील शेयर हिज नंबर विद यू। सो मैं अंजू जी कुछ मैं डिस्कस आपसे करना चाहते एक मैं आपसे जी। एक चीज बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ फिजिसिस्ट, बट आई एम यस डूइंग सर। लॉट health researches in consonance with lot of doctors, the neurosurgeons, the cardiac specialists, the arthritis specialists, the oncologists, and many other doctors also. थैंक यू सो मच मिस्टर सुनील, या आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो अंजू जी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। अंजू जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hello, good evening, sir. Good evening, Anju ji. Very nice this thing conversation was there. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं TNBC की पेशेंट हूँ, मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, लिवर में मेटास्टेसिस हैं और साइड इफेक्ट्स। अभी आईवी कीमोथेरेपी वापस स्टार्ट करी है, पहले पैक्लिटेक्सेल दी, फिर उसके बाद जब फैल गया तब आप वापस आईवी पे आ गए हैं। तो साइड इफेक्ट्स तो न्यूरोपैथी तो पहले से ही थी, अब जी। दूसरे साइड इफेक्ट्स, अब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के भी ठीक हुए हों 4th स्टेज? इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं जो ठीक भी हुए हैं, लेकिन इवेंचुअली वो डिपेंड करता है कि आपकी, अगर सपोज आप मेरे को पूरी हिस्ट्री एक बार लिख के भेज देंगे तो हाँ। आई गो थ्रू योर हिस्ट्री एंड ट्राई एंड सजेस्ट यू व्हाट ऑल कैन बी डन। क्योंकि माय डॉक्टर इज नॉट रेडी फॉर एनी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट। मैंने अभी भी अपने ऑन्को को फोन किया था कि इसके साथ कुछ आईवी विटामिन सी और कीमो के साथ लगा देते हैं, तो ही सेड नहीं, हमारे इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि ऑथेंटिक, कोई ऐसी रिसर्च भी नहीं हुई है और कोई ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम अंजू जी, अगर आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने आपको ये बताया था कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये है कि हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें से शायद 1% भी डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं। दे ओनली वांट टू फॉलो द वेस्ट वर्ल्ड। एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं कि 50 साल तक यूएस एफडीए ने बोला कि साहब कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चीज है। हाँ। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स पूरे वर्ल्ड को बेची। बिल्कुल। और अब वो ये बोलना चाहते हैं कि नहीं नहीं साहब, कोलेस्ट्रॉल जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं दुनिया में। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो एंशिएंट इंडियन मेडिकल साइंस है, एंशिएंट इंडियन मेडिकल साइंस, इसके अंदर अगर आप कभी जाएंगी तो आपको ये बात समझेगी कि ये जो जितना केमिकल हम अपनी बॉडी को इनटेक एज मेडिसिन दे देते हैं, ये हमारी बॉडी को ठीक करने के बनिस्बत उसको ज्यादा बीमार कर देता है। इसके साइड इफेक्ट्स इतने सारे हो जाते हैं कि आप एक मतलब वन लीडिंग टू द नेक्स्ट, एक तो ठीक होता नहीं, उसके पहले दूसरा तीसरा चौथा और खड़ा हो जाता है। सही है, पर क्या करें, देयर इज नो रे ऑफ, मतलब कोई दिखे ना, कोई रास्ता समझ में आए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको थोड़ा सा हमारे एंशिएंट इंडियन ट्रीटमेंट पे भरोसा करना चाहिए। अभी मैंने आपको ईस्टर्न वे और वेस्टर्न वे का फर्क बताया था कि किस तरीके से वेस्टर्न वे काम करता है और किस तरीके से ईस्टर्न वे काम करता है। आपने ये भी बताया कि एक इलेक्ट्रिकल कुछ बताया था, आपने बताया था
सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ये बताया क्या था होती है? मैंने। एवरी न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, और आप उसको एक मोटे लैंग्वेज में ये समझिए कि हर सेल, हमारी बॉडी में जितने सेल्स है उसमें करीब 0.07 मिली वोल्ट का वोल्टेज होता है। हाँ, यस। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट होता है। आपने कितनी भी मेडिकेशन ले ली है, लेकिन अगर आपकी बॉडी चार्ज नहीं है तो वो मेडिकेशन का उपयोग नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। आपकी बॉडी में आपने कुछ भी इनटेक कर लिया हो बाय वे ऑफ फूड, वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता अगर आपकी बॉडी में करेक्ट ऑक्सीजन, करेक्ट वाटर और करेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है। तो नो मैटर आप कुछ भी दवाई ले लीजिए, अच्छा। अगर आपकी बॉडी में करेक्ट ऑक्सीजन, करेक्ट वाटर कंटेंट एंड करेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी दवाई आपको मदद नहीं कर सकेगी अंजू जी। अच्छा। सबसे पहले आपको इन 3 चीजों को राइट रखना पड़ेगा, और इन 3 चीजों के राइट रखने से आपका ब्लड राइट हो जाएगा, और आपका अच्छा, ब्लड अगर राइट हो जाएगा तो आपकी सारी एलिमेंट्स अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो हमें आपके यहाँ आके रहना पड़ेगा? आपका कोई इंस्टीट्यूट या ऐसा कोई है वो नहीं, हॉस्पिटल? आपको मेरे यहाँ आने का, रहने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पूरी हिस्ट्री पढ़ के मैं आपको खुद ही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि शुगर कैंसर पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा आपने मिल्क के बारे में नहीं बताया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि दूसरे लोग कहते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिल्क हैज लॉट ऑफ प्रोटीन्स, लॉट ऑफ विटामिन एंड लॉट ऑफ फैट आल्सो व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय अ ह्यूमन बॉडी। ओके। अभी एक इसके लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल और देना चाहूंगा। आप कहाँ से हैं अंजू जी? उदयपुर, राजस्थान। ओके। अभी हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड को ट्रीट कर रहे हैं, हम्म। जो हम फॉलो करते हैं, उनका इतिहास आप जानती हैं कितने साल का है? नहीं। अमेरिका को पैदा हुए कितने साल हुए हैं? 500 शायद। 500 मान लीजिए। और वहां पर एक जनरेशन कितने साल में बदल जाती है? एग्जैक्टली। वहां पर एक जनरेशन 30 साल में बदल जाती है। अच्छा। तो 500 साल में कितनी जनरेशन हुई उनकी? डिवाइड कर दो 500 को 15-17 जनरेशन हुई। हाँ, हाँ। और हिंदुस्तान का इतिहास 10,000 साल का है, वो बहुत पुराना है। और हमारे यहाँ एक जनरेशन अभी अभी का, आप ये विगत 25 साल छोड़ दीजिए, इसके पहले हमारे यहाँ हर जनरेशन 20 साल की उम्र में बदल जाती थी। तो 10,000 साल का इतिहास है और 20 साल की जनरेशन का टाइम है, तो हमारे यहाँ का इतिहास 500 जनरेशन का है। तो क्या आपके पुरखे और हमारे पुरखे बिना मेडिकल साइंस पढ़े ही चले गए? हमारे को इतनी डिपेंडेंसी क्यों हो गई है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए? क्या बोले? आपको मेरी बात समझी? मैंने क्या बोलने की कोशिश किया है आपको? समझ गई मैं। तो उसके पहले भी इंडिया एग्जिस्ट करता था, और उसके पहले भी हम ये बोलते थे कि साहब, मानव जीवन शुरू भी मिल्क से होता है और पूरा जीवन चलता भी मिल्क से है। अच्छा। अब आप ये सोचिए कि कोलेस्ट्रॉल को जब नकार दिया है आज यूएसएफडीए ने, तो उन्होंने कहा साहब आप बटर, मिल्क, चीज जो खाना है खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सही बात है। तो ये मेरा कहना है कि आप अपने मेडिकल साइंस पे ट्रस्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली इन सारी चीजों से आप बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अंशु जी डिस्कस करने के लिए। होप आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं। फैजल जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Good evening, sir. गुड इवनिंग फैजल जी, हाउ आर यू? Yes, sir, I am fine. बताएं सर। ये एक्चुअली सर मुझे 2 मंथ पहले MRI हुआ था, सीजर आया था मेरा 2 बार। ठीक है, तो मुझे MRI हुआ तो उसमें लो ग्रेड गायलोमा बताया गया, फीचर। ठीक है।
और मेरे बड़े भैया को जीबीएम हो चुका था, उनका डेट हो गया है सर। हाँ हाँ। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में है, समझ में नहीं आ रहा, सर्जरी कराने के लिए बोला गया है मुझे, लेकिन हम सर्जरी की तरफ जाना नहीं चाहते। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं फैजल भाई? मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप गया से, बिहार से। जी। अभी आपको सर्जरी रिकमेंड किया गया है? हाँ जी सर, बोला गया है। अच्छा, तो आप कब सर्जरी कराना चाहते हैं? अभी मैं वेट कर रहा हूँ सर, मतलब अभी तो कोई सिम्टम है नहीं मेरे शरीर में, वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मेरे से क्या चाहते हैं? कोई ऑप्शन है सर? सर्जरी की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ अभी मैं, शायद आ, मतलब इंक्रीज ना हो। आप मेरे से फैजल भाई, मेरे को आपकी पूरी जो एमआरआई की रिपोर्ट्स हैं वो अगर एक बार भेज देंगे जी सर। तो मैं आपको सजेस्ट कर सकूंगा कि क्या आपको करना चाहिए अभी। जी सर, ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। जी फैजल जी, आप अपना कांटेक्ट नंबर मुझे यहाँ पे चैट पे शेयर कर दीजिए एंड हमारे कैंसर कोच आपको कॉल करेंगे। आप उनको अपनी सारी रिपोर्ट सेंड कर दीजिए एंड मैं डॉक्टर मिस्टर सुनील को भी फॉरवर्ड कर दूंगी आपकी रिपोर्ट्स एंड आप उनका कांटेक्ट नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगी मैं। थैंक यू। दीपक जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? दीपक जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर सुनील बजाज। मैं दीपक हूँ। गुड इवनिंग दीपक जी। मैं तो आपको सपोर्ट करने की बात ही कर रहा हूँ कि अब हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो गिनी पिग ऑफ अमेरिकन है। बिल्कुल ठीक बात है सर। कल ही हम लोग एक मीटिंग में बैठे थे, इवन ऑन्कोलॉजिस्ट एग्री हो गए। वो 12 ऑन्कोलॉजिस्ट थे साथ में मेरे, तो हम लोग सब गिनी पिग है, हमारे को वो जो बोलते उतना ही बोलना पड़ता है। हम वो खुद एग्री हुए कि इनको हम लोग आयुर्वेद में है सब ट्रीटमेंट इसके लिए, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते कुछ भी। बॉम्बे में कल हमारी मीटिंग थी 12 लोग से। हाँ हाँ हाँ। मैं तो केयर टेकर हूँ मेरी वाइफ का, और ऐसे मोटिवेटर भी हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं तो आपको यही आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए मैं बोला, और कुछ नहीं है मेरा। नहीं, बाकी मैं एक्चुअली आपसे में क्या है दीपक जी, इतनी एक बहुत छोटी सी बात है कि हम एज इंडियंस हम अपने इंटेलेक्ट पे अब भरोसा करना ही भूल गए। मेन बात ही वही है। हम हमेशा अब कॉपी कैट्स हो गए हैं कि किसी ने हमें बोल दिया, सफेद चमड़ी ने हमको बोल दिया कि साहब यही आपको करना चाहिए, तो हम उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। परफेक्ट, आप सही बता रहे। और उन लोगों ने आपको एक मेडिसिन कंज्यूमिंग मशीन बना दिया है। करेक्ट। आपको एक बीमारी लगा दी और उस बीमारी की पूरी दवाई पूरी उम्र भर आपको लेनी पड़ेगी। बराबर। या थैंक यू सो मच दीपक जी। आशा जी, मैं सुनील सर का नंबर आपसे लेता हूँ, मैं बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग ज्यादा और भी इसके बारे में। पक्का पक्का जी, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू दीपक जी। एंड मैं बाकी सब लोगों को भी बताना चाहूंगी कि हम लोग का जो सेशन का टाइमिंग है वो काफी अब लिमिटेड रह गया है। सो जितने भी लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स पे शेयर करके अपना नंबर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग इवेंट के बाद आपसे कनेक्ट कर सके। और जितने लोगों को मिस्टर सुनील से कनेक्ट करना है उनको भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने नंबर्स आप मुझे यहाँ पे शेयर कर दीजिए एंड इवेंट के बाद मैं आप लोगों को मिस्टर सुनील का नंबर शेयर कर दूंगी। श्रवण जी काफी देर से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। श्रवण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। श्रवण जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके, आई थिंक श्रवण जी की साइड कोई नेटवर्क इशू है। यहाँ गौतम जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, क्या मैं अंग्रेजी में पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल गौतम जी, यू कैन गो अहेड। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। My name is Gautam and I was diagnosed with testicular germ cell tumor.
and it's been 4 cycles of chemo and 2 cycles of radiation, due to Okay. which the treatment has responded really well, and up to 90% it has been cleared. I mean, the cancerous cell has been cleared. Now Okay. it is time to go for an orchiectomy. Mm-hmm. My question is that is orchiectomy a must for testicular germ cell tumor, or can I manage it through any other alternative treatment? No, this you won't be able to manage it with any other alternative therapy, because this is a study-based procedure. Okay. This is a study-based procedure, and आपका प्रोग्रेशन कैसा है या नहीं है, क्या है, उसको जानकारी लेने के लिए ये सब स्टडीज की जाती हैं। पर मेरा सब्जेक्ट इससे थोड़ा सा अलग है गौतम जी। मेरा सब्जेक्ट ये है कि आज अगर सपोज हम जिस भी स्थिति में हैं, इससे हमको क्योर भी होना है और ये रियकरेंस ना हो, हमें वो भी ध्यान रखना है। अच्छा, वो जानने के लिए हम टेस्ट करा सकते हैं ना, वो सीटी हाँ, स्कैन? आप टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद में आपकी जितनी भी रिपोर्ट है वो आप मेरे को भेज दीजिएगा एक बार। अच्छा, तो आई विल बी एबल टू सजेस्ट यू कि व्हाट ऑल थिंग्स कैन हेल्प यू। और मेरी जितनी भी मेडिकेशन है उसमें किसी भी तरह का कोई मेडिकेशन नहीं होगा। इट विल बी ट्रीटेड बाय ऑक्सीजन, वाटर एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। दैट इज इट। Okay, sir. I am going in this way. I mean, integrated oncology treatment. I am going in this way. After 3 months, if I go for a PET CT scan again, and the reports are seen to be normal, like as it was taken before 4 months. If Okay. it is exactly normal, or no improvements in cancer growth, so can I continue the same treatment, or should I go for surgery? No, but then how long you will be able to continue with the same treatment? Okay, then orchiectomy is better. No, that is why I'm asking you ki your oncologist will tell you ki how long you can continue with this treatment, one, and eventually all this treatment has reduced down your problem or not. Probably increasing the problem anytime can the problem be increased, but then has such an treatment has decreased your problem or not? That I will come to know during when I get my next PET CT scan. Correct, Yeah. correct. Okay, that is what I wanted to ask, whether it is No. as many tell that it is always better to go for an orchiectomy. But what if the patient is not comfortable with an orchiectomy? That is what my main question is. No, then you need to work out with alternate medicines. Okay, you mean to say that I have to work out with alternative medicine like lifelong? No, you will those alternative medicines, by virtue of using the word medicines, they are not medicines actually. Okay. It is the correct use of oxygen, it is the correct use of water, and it is the correct use of self-charging of your body. Self-electrical charging of your body. Okay. Okay, sir. So this does not involve any kind of a medication. I hope you understand my point. Yeah, I got it, sir. So I am available to you at any time. Whenever you require my help, I am available to you. Okay, sure, sir. I will, if I get any doubt, I will surely contact you. Thank you, sir. Yeah. Thank you so much, Gautam ji. You can share your contact number with me on the chat, and I'll share with you Mr. Sunil's number. Thank you. So we have 2 more people जिनको doubts discuss करने हैं. If it is okay, Mr. Sunil, हम उनसे भी discuss कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कोई issue नहीं है. जी, स्वागतिका जी, मैं आपको unmute कर रही हूँ. Hello, hi Sunil ji, hi Asta ji, good evening. Good evening, ma'am.
जी सुनील जी, मैं आपसे ये बात करना चाहती थी। इनिशियल स्टार्टिंग पे आप बोले थे कि आपके जो मदर इन लॉ है वो जीबीएम पेशेंट है। एक्चुअली माय डैड इज आल्सो ए जीबीएम पेशेंट, सो ही वाज डायग्नोस्ड इन द मंथ ऑफ September. Then we had a resection, I mean surgery. It was a complete removal of the tumor, but then now he did radiation and weekly metronomic of temozolomide, that chemo. So now we are yet to start our monthly temozolomide now. So my question is that there are several factors that is affecting GBM recovery process, right? So my dad is unmethylated, so I wanted to ask you, what was your brother-in-law's methylation status? And as it is a complete removal of the tumor, I want to take benefits of this removal process, and we really want to stop recurrence. So for that reason, we are just searching, and we are open to integrative therapy also. So I just wanted to कि हम क्या कर सकते हैं, कि क्या ऐसे प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग फॉर योर ब्रदर इन लॉ। सो आप अगर कुछ एडवाइस दे सकते हैं तो इसमें मुझे। I need to have two questions from you. One, where do you belong to? I am from Odisha. You're from Odisha. One. Second, what is the age of your dad? He is 58 years old. I think so. 58 years is no age. One, you have age on your side. Definitely this can be done. One. Yeah. Secondly, your question was you are in the process of starting your monthly chemo, right? Yes, yes. That would be TMZ 360 mg every day for 5 days a month. Yes, correct. Now the important question is, in case if you are willing to take up this treatment, this alternative therapy, let me first tell you, in case if the doctors, they claim they have removed 100% of the malignancy of the tumor and the tumor from the brain, then what is the requirement of the radiation? So they said, I had the similar question to my oncologist, the neurosurgeon who had removed completely. The thing is, they're saying there are some cells that are in form of liquid. It's a stem cell, cancer stem cell, that might grow up eventually, and that stem cell will not it will be resistance to your alternative therapies like radiation or something, chemotherapy. So that is the reason we want to stop. How we can just put one more question to your oncologist. Sir, after doing the radiation and after doing the regular chemo and now shifting to monthly chemo, after all this, what is the possibility of reoccurrence? Get the same question, the same answer I got from him also. The same thing, because some cells are in the form of liquid in the brain and that might grow up. I had asked the same question to Dr. B.K. Mishra, who's performed close to around 25,000-30,000 surgeries. That, sir, of your 35-40 years of experience of this surgery, how much percent patients have reoccurrence after the surgery and chemotherapy and radiations? Yeah, almost all. He said it is 100%. Yes. And the only question can be, what can be different is, one person can have a reoccurrence within 3 months and the next person can have a reoccurrence within 8 months or 10 months or a year. Yeah, correct. This is the only difference. There is no other difference possible. Yeah, same response even I got. So, अगर आपने मेरी पूरी बात शुरू से सुनी होगी तो मैंने यही बताया है कि अब now my bigger challenge is reoccurrence. Yeah.
And what is the general condition of your dad? Your name is Anjali, right? Swagatika. Swagatika, okay. So, Swagatika, what is the general condition of your dad? So जब रिमूवल कंप्लीट मतलब सर्जरी के बाद लेफ्ट साइड उनका वीक हो गया था. I mean completely sensation less भी हो गया था, मतलब he couldn't feel his hand anything left side का. Now अभी हम लोग फिजियोथेरेपी कराने के बाद उनका he can walk at least 2 kilometer every day and हाथ का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था. अभी he can वो योगा वगैरह वो कर सकते हैं अभी. So अभी थोड़ा I think so, Swastika, your father is in a good condition. Yeah. You can surely go in for these alternative therapies, and I'm sure you will recover from this menace, and you will be definitely out of this reoccurrence. I would say इसका जो डर होता है reoccurrence का, इससे भी आप बाहर निकल जाएंगे. जी बिल्कुल, वही तो हम चाहते हैं. I would love to connect with you personally. If I will connect with Asta ji and I'll take your number and probably I can call you. Anytime, Swastika, anytime. It will be my pleasure to give you the entire knowledge what I have gained out of all these years of my researches. And I would like to help you, and I'll be the happiest person on earth if your dad can get well soon. Thank you so much. Thank you so much. I'll just connecting with you. Yeah, definitely. Thank you, Swastika. And thank you, Swagatika. I'll connect with you after this session. I already have your number, and I'll share Mr. Sunil's number with you. Thank you. Okay, so I have Shanta ji. He wants to discuss from a long time. Shanta ji. Namaste, sir. Namaste, sir. Namaskar, Shanta ji. I have a question. I'm a cancer fighter. Actually, आप कहाँ से हैं? I'm from Bangalore. Okay. My breast cancer ER positive. Now it is on treatment is going on for the bone. It is spread on my bone. Okay. Now my question is, sugar-free diet means, is it including the rice and all carbohydrates also? Not only the sugar and food and all? No, you cannot have your food without rice and carbohydrates together. There is no food available which can give you no carbohydrates and no rice. Okay. So you should avoid the direct sugars one. Okay. Rice, yes, occasionally you can avoid and occasionally you can have, but then carbohydrates you cannot avoid. Probably you cannot avoid a chapati in your if you avoid a chapati and a rice, then what are you going to eat all your life? Yes, sir. Now I tried it is little bit. Sometimes I have rice and other day no, like no. Then I feel very tired next day, and I feel very थकावट हो रहा था. फिर rice चालू किया. And some people advise me not to take too much fruits and all. Is it okay, sir? No. You can have fruits and everything except for direct sugar and avoidance of rice. You can have everything otherwise. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I wanted to connect with you. Yeah. You can connect with me anytime. Not an issue at all. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thank you, Shanta ji. You can share your contact number with me, and I'll share Mr. Sunil's contact with you. Thank you for discussing. So we have Raji left. He's raising to discuss something. Raji, मैं आपको unmute कर रही हूँ. Yeah, good evening. Good evening, yeah, good evening, doctor. My wife, she's 73 and she had a throat cancer, LACA. And now she went through chemo and radiation. Now we went for another PET scan in which they are showing
some nodules in the chest also, one only. So that one was tested and it has proved positive. Now the doctors in this HCG hospital in Bangalore, they are considering what to do. They are thinking they'll 1 more month of alternative treatment and thereafter surgery. The throat surgery is sure. They say possibly they'll find some method of reducing the nodules in the throat. Now, what is the alternative treatment we should simultaneously do? Are you located in Bangalore, sir? Yes, sir. Since doctors, they prescribe you that she doesn't have great amount of time. No, doctors have time. They are very responsive. No, doctors have time, but doctors and the patient also has got a lot of time. She is, after radiation and this thing, she has spent 1 year now. In this last 4 months, she has been in suppressive treatment of chemo. What I would suggest you, sir, you please send me all the details of your wife. I'll be able to definitely guide you to some alternative treatment. And since you are located in Bangalore, it will be much more easier for you to take those treatments. All right, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Ratna ji. Please share your contact number with me on the personal chat and I'll connect you with Mr. Sunil. So sir, इसी के साथ हम लोग आज का सेशन कर सकते हैं एंड नीतू जी, प्रतिभा जी, मैं आप दोनों से चाहूंगी कि आप अपनी कांटेक्ट नंबर मुझे यहाँ पर्सनल चैट पे शेयर कर दीजिए एंड आपकी जो भी क्वेरी है हम लोग उस क्वेरी को भी, अगर आपको मिस्टर सुनील से कनेक्ट करना है तो हम आपको मिस्टर सुनील से भी कनेक्ट कराएंगे एंड बाकियों के लिए भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको और भी कोई डाउट है या आप एक्सपर्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज यहाँ चैट बॉक्स पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। सो इसी के साथ मिस्टर सुनील, मैं आपको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज का जो सेशन था काफी इंसाइटफुल था, काफी हेल्पफुल था, कई लोगों को काफी नॉलेज मिली है, काफी चीजों के बारे में आपने बताया, इम्पोर्टेंस बताया, हमारे खुद के जो मेडिकल सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है इंडियन। एंड थैंक यू सो मच सर आज के, एंड आई होप दैट हम लोग फ्यूचर में आपके साथ और भी ऐसे सेशंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर। Astha, and I would be thankful if you can send me the recording of this entire program. डेफिनेटली सेशन के बाद जो रिकॉर्डिंग है आई विल शेयर इट विद यू एंड मैं हमारे व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। या थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू। नीतू जी, प्रतिभा जी, आप लोग प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिए एंड इवेंट के बाद हम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे एंड अगर आपको मिस्टर सुनील से कांटेक्ट करना है तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।